Assalamualaikum guys, I hope all of you are doing well. The topic for this video is the financial statements of a partnership business. Uh, in the previous class, we learned about all the theoretical aspects of a partnership business, the introduction to it, the characteristics of a partnership business, what is a partnership agreement or a partnership deed, what is to be included in a partnership deed, and we also learned about what interest on capital is, what interest on drawings is, uh, you know all these theoretical aspects. I will try and make a video on that as well, so that you have a reference to go back to if you face any problems. But I don't think so you will be facing any problems in the theoretical aspects, as you must have studied all that already in your business studies or your economics course as well. So now we are going to move on to the financial statements of a partnership business. These were also discussed in the last class that we had. Now, when we talk about the financial statements of a partnership business, the first financial statement is obviously at the end of the year going to be the income statement, and the objective of making this is to find out how much profit or loss has the business made. Now, this is the format of this is absolutely same to the one for a sole trader or a services business. So the format to this you should already know. वही format है जो हम sole trader के लिए follow करते थे, nothing new. Then after making the income statement, once you have your profit for the year, then you make your appropriation account. Alright, now the objective of making this appropriation account is to distribute the profit that was made among the partners. And the format for the appropriation account was already explained in the last class. Here is a slide with the format for the appropriation account. You get your net profit from your income statement. These are obviously all imaginary figures. You add your interest on drawings to it. This interest on drawings is obviously paid by the partners to the business. Then you subtract the interest on capital paid to the partners. So you add your interest on drawings to your net profit. As you can see here, 20 plus 5 has become 25. Then you pay pay the interest on capital to the partners out of the profit. So you can see this 6,000 will be paid to the partners. Then you pay the salaries. In this case, only one partner has a salary. So if there were two partners having salaries, so दोनों की salaries यहाँ पर आएंगी. Now you can see 6,000 is interest on capital and 9,000 is the salary. So total amount paid to the partners are 15,000, and 25 में से हमने ये 15 माइनस किया है, तो ये we have got 10,000 left. And then that 10,000 was distributed among the partners. Now this distribution is going to take place as per the profit or loss sharing ratio. In this case, the profit and loss sharing ratio is equal. You can see that दोनों को half profit मिला है. If the case would have been different, तो फिर जो ratio हमें given होता हम वो follow करते. Now, as explained in the last class, this ratio can be given on as a percentage. So for example, लिखा होता कि Abrahams का 60% है and Peterson का 40% है. That could have been the case. या फिर ये भी लिखा हो सकता था कि they share profits and losses in the ratio of 3 to 2. So इसका क्या मतलब होता, that total parts of the profit are 5, 3 plus 2 5. So उन 5 parts में से obviously 3 parts are for Abrahams and 2 parts are for Peterson. So then how could you have calculated that? तो इस 10,000 को फिर आप multiply कर देते 3/5 से to find out Abraham's profit. ठीक है, और पेटरसन के लिए आप क्या करते, उस फिगर को मल्टीप्लाई कर देते 2/5 से, तो उसका प्रॉफिट मिल जाता आपको, राइट. सो देयर कैन बी अ डिफरेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो. Coming back to the financial statements, after this you make your appropriation account, and then you might have to make the current accounts of partners. It was already explained in the last class कि क्या होते हैं current accounts partners के लिए, partners के, and क्यों बनाते हैं हम ये, because the capital of the partners is fixed. So वो जो capital account हम partners का बनाते हैं उसमें हम उनका initial capital सिर्फ input करते हैं. For example, this is a capital account for partner A, let's say, और उसने 100,000 से बिजनेस स्टार्ट किया है, लेट्स से, तो हम वो 100,000 यहाँ पर एंटर कर देंगे एंड दैट्स इट. देन इसमें फर्दर कोई एंट्री हम नहीं करेंगे. तो फिर जो एवरी ईयर जो एंट्रीज़ होनी है उसके कैपिटल के अकाउंट में, वो सब उसके करंट अकाउंट में होंगी.
दिस इज़ हाउ यू मेक अ पार्टनर्स करंट अकाउंट जस्ट लाइक अ नॉर्मल कैपिटल अकाउंट. ये भी ऑब्वियसली टी अकाउंट है. And obviously this is the credit side, this is the debit side. Everything that increases a partner's capital into the business, यानी उसका जो क्लेम है पार्टनर का वो बिजनेस में जिन चीज़ों से बढ़ता है वो ऑब्वियसली यहाँ पर आएंगी ऑन द क्रेडिट साइड, एंड जिन चीज़ों से वो कम होता है वो आएंगी ऑन द डेबिट साइड. सो यू कैन सी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलता है, उससे उसका कैपिटल बढ़ेगा, सैलरी से भी उसका कैपिटल बढ़ेगा, कमीशन से उसका कैपिटल बढ़ेगा, प्रॉफिट से उसका कैपिटल बढ़ेगा. इसीलिए ये सारी चीज़ें क्रेडिट साइड पे हैं. अगर वो ड्राइंग्स करेगा बिजनेस में से तो उसका कैपिटल कम होगा, इसीलिए ये डेबिट साइड पे है. जब वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करेगा तो भी उसका कैपिटल कम होगा, इसीलिए ये भी डेबिट साइड पे है. एक चीज़ जो यहाँ मिसिंग है वो है लॉस. अगर लॉस हो बिजनेस को और लॉस का शेयर मिले पार्टनर्स को तो वो भी डेबिट साइड पे आता है, सिंस दैट डिक्रीजेज द कैपिटल. और एक चीज़ इस फॉर्मेट में जो क्रेडिट साइड पे मिसिंग है दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन. तो ये मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में कि कभी कभार पार्टनर्स अपने ही बिज़नेस को लोन देते हैं एंड उस पर ऑब्वियसली उनको इंटरेस्ट मिलता है, तो वो इंटरेस्ट भी उनको उनके करंट अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा, यानी उनका जो क्लेम है बिजनेस में वो ऑब्वियसली बढ़ जाएगा. ठीक है. सो नाउ वी मूव ऑन टू एन एग्जाम्पल. ओके, सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू make your appropriation account and the partners current accounts. बाकी इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट जैसे मैंने पहले बताया सेम है, एंड जो लास्ट हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है विच इज़ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो कि बैलेंस शीट है हमारी, उसके फॉर्मेट में क्या डिफरेंस है? उसके फॉर्मेट में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक चेंज होगा. वो क्या होगा? सो इन शॉर्ट दिस इज़ हाउ द फॉर्मेट इज़ गोइंग टू बी. जैसे आप नॉर्मल सोल ट्रेडर की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं, यू स्टार्ट विद योर नॉन करेंट एसेट्स, देन यू ऐड योर करेंट एसेट्स, तो आपके पास टोटल एसेट्स आ जाते हैं. और फिर आपका जो कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ वाला सेक्शन है उसमें एक मिनट, उसमें यू राइट योर नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, योर करेंट लाइबिलिटीज़. और फिर जब कैपिटल हमने लिखना होता है तो हम क्या करते हैं? पहले हम कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस लिखते हैं दोनों पार्टनर्स के या जितने भी पार्टनर्स हैं उनके, और फिर हम उनके करंट अकाउंट के बैलेंसेस लिखते हैं, और फिर इन चारों को हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास हमारे टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ आ जाता है. तो ऑब्वियसली दिस इज़ सिंपली अ फॉर्मेट. अभी हम इसका एक कंप्लीट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो इट विल बी मच मोर क्लियर टू यू इंशाल्लाह. उसके लिए भी मैं एक वीडियो लेसन बना दूंगा. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दीज टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द करंट अकाउंट. और फिर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इन डिटेल, जिसमें हम ये चारों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनते हैं वो देखेंगे. ठीक है. ओके, कमिंग बैक टू द एग्जांपल, आईना एंड बैरी आर इन पार्टनरशिप. द पार्टनरशिप एग्रीमेंट स्टेट्स द फॉलोइंग: interest is charged on drawings at the rate of 6%, interest is paid on capital at the rate of 4%, एंड पार्टनर्स के लोन पे जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा वो 5% पे किया जाएगा. बेरी रिसीव्स अ सैलरी ऑफ 8,000. इसका मतलब आईना की कोई सैलरी नहीं है. प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर शेयर्ड 3/5 फॉर आईना एंड 2/5 फॉर बेरी. सो यू कैन सी के आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट की गिवन है. द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज अवेलेबल ऑन 1 May 2014. तो ये 1 May 2014 का डेटा है सारा. So there is additional information as well for the year ended 30th April 2015. So obviously the year which is starting on 1 May 2014 is going to end at 30th April 2015. So we'll take this additional information into account as well. Now what is the first requirement? You need to prepare the appropriation account for the partnership. So income statement इसमें हमें क्यों नहीं बनानी है? Because the profit for the year is already given, right? सो आपको प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑलरेडी गिवन है जो आपको इनकम स्टेटमेंट से निकालना होता है. सो इन दिस केस दे डोंट वांट यू टू मेक द इनकम स्टेटमेंट, दे वांट यू टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप एंड मेक द अप्रोप्रिएशन अकाउंट. नाउ यू कैन सी द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 19,800, बट दिस इज बिफोर लोन इंटरेस्ट. सो इसमें से अभी लोन का इंटरेस्ट आपने माइनस करना है फॉर इट टू बी योर नेट प्रॉफिट. नाउ हाउ मच वॉज द लोन? इट वॉज 40,000. एंड हाउ मच वॉज द इंटरेस्ट ऑन द लोन? वो हमें यहाँ पर गिवन था. इंटरेस्ट ऑन लोन इज़ 5%. ठीक है. नाउ 40,000 है एंड इसका 5% इंटरेस्ट होगा विच इज़ गोइंग टू बी 2,000.
सो इस 19,800 में से हम 2,000 माइनस कर देंगे. सो आर नेट प्रॉफिट इन दिस केस इज गोइंग टू बी 17,800. ठीक है. सो हाउ डू यू मेक द अप्रोप्रिएशन अकाउंट? यू स्टार्ट विद योर profit for the year, which is 17,800. The next step is you add your interest on drawings, जो हमारा next step होता है appropriation account का. Now these two figures will need to be calculated. How will they be calculated? You can see that the drawings during the year are already given to you. Aina has 7,500, Barry has 10,000, and the interest on drawings is charged at the rate of 6%. सो आइना के लिए 7,500 का आप 6% लेंगे एंड बैरी के लिए 10,000 का आप 6% लेंगे. तो वो जो आंसर्स आएंगे दे आर गोइंग टू बी 450 एंड 600. सो यू ऐड दीज टू फिगर्स, यू गेट 1,050. सो 1,050 एंड 17,800 आप ऐड कर देंगे टू गेट दिस फिगर. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ यू सब्ट्रैक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सो दो केसेस हैं यहाँ पर, आइना एंड बैरी. दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग अलग गिवन है. Going back to the information provided in the question, now you can see that the capital account balances of Aina and Barry were 50,000 and 20,000. So यहाँ पर लिखा हुआ है Barry increased his capital in the partnership by 20,000 on 1 November 2014. So year start हो रहा था हमारा 1 May 2014 को, right, and it is ending at 30th April 2015. सो 1 नवंबर को बैरी ने अपना कैपिटल इंक्रीज़ किया है. इसका मतलब यह है कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो अक्टूबर तक यानी 6 मंथ्स उसका जो कैपिटल था वो ये था 20,000. उसके बाद उसने 20,000 से अपना कैपिटल बढ़ा दिया, यानी आखिर के जो 6 मंथ्स थे उसमें उसका कैपिटल बढ़ के 20 से कितना हो गया था, 40. तो इसका मतलब ये है कि उसको 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा 20,000 पे एंड 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा 40,000 पे. ठीक है. एंड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एट द रेट ऑफ 4%. सो आइना का कैपिटल कितना गिवन है? आइना का कैपिटल गिवन है 50,000. तो यू कैन सी हियर दैट आइना का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 2,000. ये कहाँ से आया है? ये उसके 50,000 का कैपिटल है, राइट, एंड 4% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, राइट. सो 50,000 का 4% लिया गया है यहाँ. यू कैन सी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 4%. सो 50,000 का 4% लिया गया है टू फाइंड दिस. नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड इन द केस ऑफ बेरी? यू कैन सी दैट देयर आर टू सेपरेट अमाउंट्स गिवन हियर, 400 एंड 800. सो ये कैसे आया? 20,000 उसका कैपिटल था फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स, उसका आप 4% लेंगे तो वो आएगा 800. एंड ऑब्वियसली ये 800 तो पूरे ईयर का है, तो उसका ये जो 20,000 कैपिटल था ये 6 मंथ्स के लिए था. तो फिर आप क्या करेंगे, 800 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6/12 से टू गेट 400. सो दिस इज़ हाउ दिस 400 इज़ कैलकुलेटेड. एंड देन जो बाकी 6 मंथ्स थे उसमें उसका कैपिटल बढ़कर हो गया था 40,000. नाउ व्हाट यू डू इज़ यू टेक 4% ऑफ 40,000 फर्स्ट ऑफ ऑल. The answer for this is going to be 1,600. Now once again this is for the full year. So what you do is 1,600 multiplied by 6/12. तो इसका जो आंसर आएगा 800. सो उसके जो बाद के 6 मंथ्स थे उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको मिला था 800. सो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको मिला है 1,200. तो इन दोनों को प्लस किया है तो 3,200 आ गया है. देन यू मूव ऑन टू सब्ट्रैक्टिंग सैलरी एंड गोइंग बैक टू द इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन. बैरी रिसीव द सैलरी ऑफ 8,000 पर एनम. आइना की कोई सैलरी नहीं थी, इसीलिए यहाँ पर सैलरी सिर्फ बैरी की है. तो इन दोनों अमाउंट्स को 3,200 प्लस 8,000 को प्लस किया है तो ये आया है. तो इसको आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया अपने इस लेफ्ट ओवर प्रॉफिट में से टू फाइंड दिस. ठीक है. सो नाउ दिस 7,650 इज द अमाउंट दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स एज शेयर ऑफ प्रॉफिट. अब उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या था? 3/5 फॉर आइना एंड 2/5 फॉर बैरी. नाउ व्हाट यू डू इज 7,650 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3/5 से टू फाइंड दिस, एंड 7,650 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2/5 से टू फाइंड दिस. तो दिस इज हाउ यू मेक योर
appropriation account. The next requirement of the question was you needed to prepare the current accounts. वो कैसे बनेंगे? So when you start your current accounts, you obviously start them with your opening balances. You can see एक ही टी अकाउंट में दोनों पार्टनर्स के करंट अकाउंट्स आ गए हैं, जस्ट लाइक अ कैश बुक. सो आइना एंड बैरी का दिस इज़ ऑब्वियसली द क्रेडिट साइड एंड दिस इज़ ऑब्वियसली द डेबिट साइड. सो एक ही टी अकाउंट में हमने दोनों के बना दिए हैं करंट अकाउंट्स. अगर आपको यूँ मुश्किल लगे तो आप दोनों के सेपरेट भी बना सकते हैं. देयर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम इन दैट. ठीक है. ओके, सो करंट अकाउंट्स के लिए यू ऑब्वियसली नीड दी ओपनिंग बैलेंसेस फर्स्ट. सो ओपनिंग बैलेंसेस कहाँ गिवन है हमारे? यू कैन सी करंट अकाउंट आइना का है 800 डेबिट और बैरी का है 6500 क्रेडिट. सो यू कैन सी आइना के कॉलम में हमने 800 डेबिट पे लिया है और बैरी में 6500 क्रेडिट. जो अब ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन लोन सिर्फ बैरी को मिला था तो वो हमने क्रेडिट कर दिया. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का जितना जितना था जो हमारे अप्रोप्रिएशन अकाउंट में गिवन था वो हमने दोनों के अकाउंट्स में क्रेडिट कर दिया. सैलरी हमने क्रेडिट कर दी एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट कर दिया. ऑन द डेबिट साइड वी हैव ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. ये सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में अवेलेबल है. आपने इसको इनपुट करके और एंड में जस्ट लाइक अ नॉर्मल टी अकाउंट बैलेंस कर दिया है. तो एक पार्टनर विच इज़ बैरी उसका करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट साइड पे आया है एंड दूसरे पार्टनर आइना उसका बैलेंस डेबिट साइड पे आया है. इट वॉज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड इन द लास्ट क्लास कि आपका जो करंट अकाउंट है उसका बैलेंस डेबिट साइड पर शिफ्ट कर सकता है. वो इन वॉट केस? जब आप अपना जो बिजनेस में क्लेम है उससे ज़्यादा पैसे विड्रॉ कर लेते हैं तो दिस हैपन्स. Okay, so I hope the appropriation account and the current account were clear. Now I'm going to upload at least 2 questions for you to make the appropriation account as well as the current account.